السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر اور حقائق اور میں ہوں عمر خطاب۔ الیکشن کمیشن نے آج تحریک انصاف کو 20 روز میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا ہے اور ساتھ ساتھ 7 دن میں رپورٹ بھی الیکشن کمیشن کو جمع کرانی ہوگی، ورنہ جو ہے بلے کے نشان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو انتخابی مہم کا جو ہے ملک بھر میں ریلیوں کے ذریعے آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی تک انتخابی مہم کا بھرپور طریقے سے آغاز نہیں کر سکی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے، ان پہ ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ کب جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچیں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے انتخابی مہم کی سربراہی کریں۔ اور ایک افسوسناک خبر آج سامنے آئی ہے، شمالی وزیرستان میں اور باجوڑ میں مختلف مقامات پر 2 دھماکے ہوئے ہیں جن میں جو ہے افراد شہید ہوئے ہیں، اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ان ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب ناصر عظیم خان صاحب، تجزیہ کار ہیں، لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کا۔ اچھا خان صاحب، کیا لگتا ہے جس طرح الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے اور 7 روز میں رپورٹ جمع کرانا، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ کو بلے کے نشان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اگر آپ اس طرح عمل درآمد نہیں کریں گے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اور جو آج الیکشن کمیشن نے تفصیلی فیصلہ جو محفوظ کیا ہوا تھا وہ دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو پابند کیا 7 یومیہ کے اندر رپورٹ سبمٹ کروانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف آپ کہہ لیں کہ فیصلے کی جو متن ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو 20 دن کی ٹائم ہے کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیگلی بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس سننے کو ملی ان کے ایک لائر کی جانب سے، اور وہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، تو قواعد و ضوابط بات نہیں ہوئی تھی، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ قواعد و ضوابط کے مطابق الیکشن نہیں ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سالوں سے قواعد و ضوابط کے مطابق ہو بھی نہیں رہے، اور مجھے اس لیے بھی علم ہے کہ 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا جب وہ اقتدار میں تھے، یہ بڑی پرانی بات ہے، تو ان کے بائی لاز وغیرہ بھی میرے ہاتھ کے ہیں، میں دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، اور ہم اس میں کافی سارے اسسٹ پارٹی کو کرتے رہتے تھے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ واقعی میں انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہو رہے ہیں وہ قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں ہیں، اور ہونے چاہیے۔ 20 دن کا بڑا ٹائم ہے، چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اتنا پابند کیا جاتا ہے جن کے پاس 500 افراد بھی نہیں ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کروڑوں لوگ ہیں، تو انٹرا پارٹی الیکشن کروا کر 20 دن کے اندر اندر اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ خان صاحب، کیا جو پی ٹی آئی نے حکمت عملی بنائی ہے کہ وکلاء جو ہیں ان کو الیکشن لڑانے کے حوالے سے کہ زیادہ جو کینڈیڈیٹ ہوں گے تحریک انصاف کی طرف سے وہ وکلاء ہوں گے، وہ پارٹیسپیٹ کریں گے الیکشن میں، تو کیا یہ حکمت عملی کامیاب ثابت ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، جہاں تک بات پاکستان تحریک انصاف نے ایک پالیسی نئی اپنائی اور کہا ہے کہ وکلاء الیکشن کنٹیسٹ کریں ہماری جانب سے اور وکیل کو ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وکیل انہیں اب یاد آئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ 1300 وکیل اب پارٹی کا الیکشن لڑیں، اور 1300 ایسے کہ 4 صوبوں کا اگر دیکھا جائے تو 4 صوبوں میں 1000 کے قریب کینڈیڈیٹس ان کو چاہیے، اور اگر بات کی جائے وفاق کی تو 272 کے قریب کینڈیڈیٹس بنتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ سیٹس کے الیکشنز ہوتے ہیں، تو اپروکسیمیٹ یہ بنتا ہے 1200 سے 1300 انہیں لائرز اب چاہیے، اور ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ وہ لوگ ہوں جو تگڑے ہوں، جو الیکشن کانٹیسٹ کر سکیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب انصاف لائرز فورم جب کسی دور میں محنت کیا کرتی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تو وہ اس کو بالکل بھی بادر پاکستان تحریک انصاف نہیں کرتی تھی، بلکہ آپ کو ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف ریکگنائز بھی آئی ایل ایف کو نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ جب 2016 سے لے کر 2019 تک میں آئی ایل ایف اسلام آباد کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں پی ٹی آئی کا، جو وکلا ونگ اسلام آباد تھا، تو کہنے کے مقصد ہے کہ خان وکیل یاد نہیں تھے، اب جب پاکستانی قوم پستی ہے تو انہیں تب بھی وکیل یاد آ جاتے ہیں، کسی وکیل کی بات ہو سوشل میڈیا پہ تو اس طرح ٹرول کیا جاتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور جب آج پولیٹیکل پارٹی کی بات آئی ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1300 وکیل مل جائیں تاکہ تمام پاکستان کی بار ایسوسیشنز اس میں انوالو ہو جائیں، ہمارے ساتھ پارٹی بن اور سارے کے سارے معاملات کو ہمارے لیے ایک لڑائی کریں۔
जब हुकूमत आ जाएगी तो फिर इनको चौधरी मिल जाएगा, इनको कोई बड़ा लीडर मिल जाएगा, कोई फिर मुराद सईद वापस आ जाएगा, फरूख हबीब से लेकर उस्मान डार भी पाक। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जेल से पैगाम आया है कि अली अवान को कुछ नहीं कहना। तो भाई अगर अली अवान को या फरूख हबीब को या उस्मान डार को कुछ नहीं कहना, तो मुझे ये बताएं कि वो आईपीपी में जाते कैसे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर पेशेंट होकर जेल काट सकती हैं, और इसके साथ साथ उमर चीमा साहब जेल काट सकते हैं, मुख्तलिफ मुतअद्दिद रहनुमा इस वक्त कैद बंद की सोबतें काट रहे हैं। इनको क्या प्रॉब्लम पड़ी हुई थी कि अब आईपीपी में लोग शामिल परवेज खट्टर के साथ होते हैं या एमकेएम या पीपल्स पार्टी या नून लीग में। तो खान साहब कहते हैं नहीं वो दबाव में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक खान साहब को इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं, और अगर खान साहब अभी वकला को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब 1300 लॉयर्स आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार तो हो जाएं। वकील हमेशा टेबल टॉक की बात करता है, वकील हमेशा पार्लियामेंट की बात करता है, कानून की बात करता है, और वकील हमेशा सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करता है। चाहे आप 1300 वकील वहां से उठा लें, 1300 वकील यहाँ से उठा लें, या किसी भी बार एसोसिएशन से उठा लें, वकील के पास सबसे पहले सुपरमेसी ऑफ लॉ होगी। और खान साहब को भी कानून के मुताबिक 9 मई को कंडेम करके और ऐसे रवाज को ख़त्म करना होगा जो आज भी गिने चुने अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर रह गए हैं, लेकिन वो यही कह रहे हैं, वो वही कंडक्ट होता है, और वो आके उसी तरह ब्लेम गेम करते हैं जो 9 मई के वाक़यात के जैसे मुतरादिफ बात या जैसे उसकी सिमिलर पे आके कोई खड़ा होकर बात करता है। खान साहब, खावर मानी का इंटरव्यू जिस तरह से वायरल हुआ और उस पर आवाम का भी रद्द अमल हमारे सामने है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जुनैद सफदर का तलाक एक निजी मामला बनता है, जबकि खावर मानी का तलाक कौमी मामला कैसे बन गया? देखें, जहाँ तक खावर मानिका की बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सीधी सीधी बात करूंगा कि बड़ी ज्यादती खावर मानिका की जानिब से भी ये इसी तरह हुआ जैसे उस्मान डार, फरूख हबीब और इन लोगों के ज़मीर जागना शुरू हुए। तो आज पहली बार देख रहे हैं कि साबिक खामन के ज़मीर भी जाग गया, और वो ये कहते हैं, साफ फरमाते हैं कि इमरान खान मेरे घर में घुस जाते थे, इमरान खान आकर इंजॉय करते थे, इमरान खान आकर कुछ भी कर देते थे, मैं मना करता था और मुझे जो है ना दूध दही लेने के लिए भेज दिया जाता था। बात यह खावर मानिका साहब, आप ही वो शख्स हैं जो बेनिफिशरी हैं, आप हैं जो फराग गोगी के फ्रंट मैन और फराग गोगी के हिडन मैन थे, आप ही हैं जिन्होंने अपनी सड़कें बनवाई, आपकी वजह से उस्मान बुजदार रहा, फराग गोगी की वजह से उस्मान बुजदार रहा। और मादरत के साथ अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स इस बात को बुरा मनाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन किरदार पंजाब को उजाड़ने में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उजाड़ने में ये जो खान साहब की एहलिया हैं हमारे काबिल एहतराम है, मगर करप्शन का गढ़ इनसे स्टार्ट होकर इन्हीं पे ख़त्म होता है। आज खान साहब जो जेल की सोबतें काट रहे हैं, खान साहब जो ख्वार हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इस खातून की वजह से ही हो रहे हैं। वो कहा जाता है ना, हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा हर नाकाम शख्स के पीछे भी किसी न किसी औरत का हाथ होता है। वरना इस तरह की सलाखें, मैं समझता हूँ कि खान साहब ने इतने कोई बुरा काम नहीं किया हुआ, बस खान साहब का गलती सिर्फ ये है कि फराग गोगी से लेकर मानिका साहब के हाथ चढ़ जाना, और मानिका साहब ने उस वक्त फैसिलिटेट किया, अपनी खातून एहलिया को डाइवोर्स की अपनी मन मर्जी से, उसके बाद जाने दिया, और उसके बाद 4 साल गवर्नमेंट में ज़मीर नहीं जागा, बेटे इंजॉय करते रहे, पैसा बनाते रहे। फराग गोगी पैसा बनाकर बाहर पहुंच जाती हैं, और वही फराग गोगी जो खान साहब इनकार किया करते थे, तो खान साहब की एहलिया की भी दोस्त हैं और खान साहब की तस्वीर भी साथ। उसके बाद खावर मानिका भी कहते हैं कि फराग गोगी दरमियान में रही, कि पाकिस्तानी माशरा यहाँ तक पहुँच चुका है कि खावर मानिका हम बन चुके हैं, हम खावर मानिका बन के कुछ भी कर सकते हैं। देखें, अगर खावर मानिका को इशू था तो वो शुरू में ये बात करता, खान के साथ अपनी वाइफ को जाने ही ना देता, और बात ये है कि अगर चली गई थी तो खामोश हो जाता जब तक कि आगे से बयान ना आता। मैं समझता हूँ कि जो खातून है इमरान खान की एहलिया, उनका तो कोई बयान इसके हवाले से नहीं है, तो फिर इसको किस चीज़ की तकलीफ आज 6 साल 5-6 साल बाद हो रही है। तो कहने का मकसद है कि हमारे माशरे का जो फेस है, हमारा माशरा जिस तरफ जा चुका है, खावर मानिका ने उसको रिप्रेजेंट किया है, और शाहजेब खानजादा साहब को भी ऐसा इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था। मेरे पसंदीदा एक्टर, उनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त, उनकी वोकल पावर, उनकी बोलने का अंदाज, उनकी स्पीड,
वो शो देखना भी पसंद नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि ये मुनासिब नहीं है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में घुस जाएँ। इमरान खान कुछ भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में करता है, ख़ावर मानिका कुछ भी करता है, नवाज़ शरीफ से लेकर फजलुर रहमान साहब कुछ भी करते हैं। हमें ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाना, हम कहते हैं पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की खातिर बात करो। नासिर साहब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है अभी तक उस तरह से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नहीं कर सकी, और उनकी जो इंतखाबी मुहिम है उसको नवाज़ शरीफ साहब के जो केसेस हैं उनके साथ जोड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि उनके जो केसेस हैं वो जल्द ख़त्म हो जाएंगे? अभी एक तारीख का ऐलान हुआ कि हम आई थिंक नेक्स्ट मंथ की कोई तारीख है जिस पे वो एक बड़ा जलसा केपी में करने जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जलसा होगा। बहरहाल वो तो देखना होगा कि होता क्या है और क्या वाकई जलसा कर सकते हैं भी हैं कि नहीं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि दफ़ा 144 नाफिज कल से ही कर दी गई है, नाफिजुल अमल दफ़ा 144। तो मैं समझता हूँ कि 2 से 4 लोगों का गैदर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुमकिन का। और स्टेट भी गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई, बल्कि एक निगरान काबीना, निगरान वज़ीर आला है, और निगरान वज़ीर आला डायरेक्ट वज़ीर आज़म निगरान के अंदर, और जहाँ से सेटअप आया है आप सबको मालूम है, ऐसे बिल्कुल भी हो नहीं सकता। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ उनको भी अभी तक इजाज़त नहीं है जलसे करने की, क्योंकि अभी तक अवाम पैदा हो रहा है और सोचा जा रहा है 8 फरवरी को भी सुनने में आता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। 8 फरवरी के इलेक्शन होना, अच्छा, मुझे नहीं ठीक है। लगता कि 8 अच्छा, फरवरी को भी एक इलेक्शन। आज अफसोसनाक खबर ये सामने आई है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में, खान साहब, शुमाली वज़ीरिस्तान में और बजोड़ में धमाके हुए हैं, और उनमें 2 एहलकार शहीद और 2 जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये दहशत गर्दी जिसके लिए हमने हज़ारों जानें कुर्बान की हैं, ये दहशत गर्दी का नसूर कैसे ख़त्म होगा आखिर? सर वो वाक़या हुआ उसके हवाले से तो मैं ज़ोर मज़म्मत करना चाहूँ, कंडेम करना चाहूँगा कि जो पिछले मामलात चल रहे हैं, अफ़गान लोगों को यहाँ से वापस भेजना, अफ़गान महाजरीन को वापस भेजना, और अमरीकी अखबार ने भी एक खबर शाया की थी कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो भी टीटीपी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। ये बाकायदा ऑथेंटिक न्यूज़, और उन्होंने एक प्रॉपर पब्लिश की है अखबार में अपनी खबर। इस पे मैंने वीलॉग भी किया था कि टीटीपी की मदद अफगान तालिबान कर रहे हैं। और जो वाक़या हुआ, मैं समझता हूँ कि ये जो अफगान हैं इनको इस बात का एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान ने लाखों मुहाजिरीन को 90s से लेकर आज तक संभाला। कोई मुल्क 35-40 साल किसी को नहीं संभालता। उनकी जो औलादें यहाँ पे पैदा हुई वो भी अब खुद को पाकिस्तानी क्लेम करने लग गई थी। बात ये है कि जब आपको वापस मुहाजिरीन को भेजा जा रहा है तो आप अपने वतन जाएं। अब आपका वतन आज़ाद है, आप जाएं वहाँ पर ज़िंदगी गुजारें। तो जो अफ़गान तालिबान का एकदम से, मैं समझता हूँ जो मिक्सचर सा रवैया आया और वो एकदम से उन्होंने रवैया बदला, वो गैर मुनासिब है। उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए वो पाकिस्तान की मदद करें। और इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और इस मामले को और इस वाक़ये को कंडेम करता हूँ, और आइंदा जितने भी लोग इस मामले को सोचें उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। नासिर अज़ीम खान साहब तर्जकार और लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी जो है वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो अफ़गान हैं और जो तालिबान हैं उनको भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि जिस तरह से 35 से 40 साल पाकिस्तान ने अफ़गान महाजरीन को यहाँ पे संभाला, कौन मुल्क जो है वो ऐसा करता है, इस तरह सपोर्ट करता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही उमर ख़ताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।